Second, economic growth. Third, price stability. Fourth, reduce unemployment. Fifth, regulate currency exchange rate. Sixth, social welfare. Two types of monetary policy. First, constru- expansionary monetary policy. Second, constructionary monetary policy. Third, unconventional monetary policy. Tools of monetary policy. Adjustments interest rates. Second, change in reserve requirements. Third, open market operation. Fourth, currency peg. Fifth, moral suasion. Objective of fiscal policy. First, economic growth and development. Second, employment generation. Third, price stability. Fourth, efficient allocation of financial resources. Fifth, equitable distribution of wealth and income. Sixth, reduce poverty. Seventh, exchange rate stability. Eighth, infrastructure development. Types of fiscal policy. First, expansionary fiscal policy. Second, constructionary fiscal policy. Tools of fiscal policy. First, taxes, and second, government spending. Yes, very good, Namrata. Very good, excellent, and very good also. Those who are typing in chat box. Any other else? कोई और बताएगा मुझे? Anyone? So कोई और बताएगा नहीं सामने से? ठीक है. Roll numbers. Yes, roll number 13. You can. 7013. Yes, sir. Objective of monetary policy: control inflation, economic growth, price stability, reduce unemployment, regulate exchange rate, social welfare. Types of monetary policy: expandatory monetary policy, unconventional monetary policy, and conventional monetary policy. Tools of monetary policy: adjustment of interest rate, open market operation, change in reserve requirement, current peak, moral fiction. Objective of fiscal policy: economic growth and development, employment generation, price stability, exchange rate stability, efficient allocation of financial resources, equitable distribution of wealth and income, reduce poverty, infrastructure development. Tools of fiscal policy: tax and government spending. Okay, very good, 13. But कुछ points आपने miss कर दिया. ठीक है. Yes, you can. Objective of monetary policy: control inflation, economic growth, price stability, reduce unemployment, regulate currency change rate, and social welfare. Objective of fiscal policy: economic growth and development, unemployment generation, price stability, efficient allocation of financial resources, and equitable distribution of wealth and income, and reduce poverty. Types of monetary policy: expansionary monetary policy, uncontractionally monetary policy. Types of physical policy: expansionary physical policy and contractionary physical policy. Types of monetary policy: adjustment of rate of interest, a change in reserve requirement, open market operation, currency peg, and moralization. Okay, very good. Roll number 36. Excellent. Roll number 7126. Come to the mic first. 7126. Yes, sir. Tell the points. क्या हुआ? हाँ सर. Tell the point first. Control inflation, economic growth, price stability, reduce unemployment,
regulate currency exchange rates, social welfare. आगे Economic growth and development, employment generation, price stability, efficient allocation of finance resources, exchange rate stability, uh, eq- uh, exchange rate stability, reduce poverty, infrastructure development, equitable distribution of wealth and income. okay types Expansionary monetary policy, contractionary monetary policy, unconventional monetary policy. okay ठीक है वेरी गुड ठीक है Thank रोल you. नंबर 7127 yes roll number 7127 B division 27 come to the mic first 7127 yes 7142 you can Objectives of monetary policy: control inflation, economic growth, price stability, reduce unemployment, regulate currency exchange rate, social welfare. Objectives of fiscal policy: economic growth and development, employment generation, price stability, efficient allocation of financial resources, exchange rate stability, equitable distribution of wealth and income, reduce poverty. Types of monetary policy: conventional monetary policy, unconventional monetary policy, expansionary monetary policy. Tools of monetary policy: adjustment of interest rate, changes in reserve requirement, OMO, open market operation, currency peg, moral cession. Tools of fiscal policy: taxes, government spending. very good 42 very good excellent so I think all of you understand the monetary policy and fiscal policy right and those who want to tell the answers thank you all of you for your coordinations in every lectures okay and very good to all of you to respond in the chat box so all of you understand the monetary policy and fiscal policy okay ठीक है now today's lecture we have to discuss about the circular flow of income circular flow of income आप लोग ने 2 सेक्टर्स इकोनॉमिक 3 सेक्टर्स इकोनॉमिक और 4 सेक्टर्स इकोनॉमिक के बारे में सुना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जिसमें 2 सेक्टर इकोनॉमिक होता है 3 सेक्टर्स इकोनॉमिक क्लोज इकोनॉमिक एंड ओपन इकोनॉमिक ऐसा भी आप लोग ने 11th 12th या फर्स्ट ईयर में सुना है कि आप लोग ने सुना रहेगा बट आप लोग को याद नहीं रहेगा नहीं सुना है क्लोज इकोनॉमिक और ओपन इकोनॉमिक्स को बोलते हैं हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सबसे पहले आता है 2 सेक्टर्स इकोनॉमिक तो 2 सेक्टर्स इकोनॉमिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हाउस होल्ड और कंपनी होती है हाउस होल्ड एंड कंपनी किसी को याद है एनीवन जिसको हम लोग 2 सेक्टर्स इकोनॉमिक बोलते हैं जिसमें हाउस होल्ड कंपनी होती हैं क्लोज्ड इकोनॉमिक उसको बोला जाता है जहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है इनकम जनरेशन कहाँ से होता है कैसे होता है विच सोर्स ऑफ फ्लो और किस तरीके से इनकम जनरेट होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें हाउस होल्ड और कंपनी का तो हाउस होल्ड एंड कंपनी से कैसे इनकम जनरेट होता है यू कैन सी द डायग्राम आप लोग डायग्राम देख के से आप समझ सकते हो ठीक है प्रेजेंट हो रहा है आप लोग को स्क्रीन ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डायग्राम दिख रहा है आप लोग को ईच एंड एवरीवन ओके सो ये डायग्राम में इसको 2 सेक्टर्स इकोनॉमिक हम लोग बोलते हैं जहां पे हाउस होल्ड और फर्म्स रहते हैं फर्म मतलब कंपनी मतलब इंडस्ट्रीज मतलब ऑर्गेनाइजेशन
तो हाउस होल्ड और फर्म से किस तरह से इनकम जनरेट होते हैं, किस तरह से इनकम खर्चे होते हैं, बताओ मुझे क्या रिलेशंस दिख रहा है हाउस होल्ड और फर्म का? कोई मुझे डायग्राम एक्सप्लेन करेगा क्या? एनीवन? चलो जाओ, मैं बता देता हूँ आप लोग को। आप लोग अभी अपने घर में हो, ठीक है, योर हाउस होल्ड मतलब अपने घर में हो। आपके पास इनकम कब आएगा, कब आप पैसा कमाओगे? यस, आप पैसे कब कमाओगे? जब जॉब पे जाओगे? Yes. यस। तो आप मतलब हाउस होल्ड और जॉब, ये टू सेक्टर्स इकोनॉमिक है, हाउस होल्ड और फर्म्स, ठीक है। जब कोई हाउस होल्ड का फैक्टर फर्म पे जाता है तो फर्म्स के थ्रू उसको क्या मिलता है? काम करने की वजह से उसको क्या मिलता है? इनकम, इनकम जनरेट होता है। यस। तो ये देखो, जैसे ही हाउस होल्ड से फैक्टर्स जाता है फर्म में काम करने के लिए, तो फर्म से क्या जनरेट होता है? इनकम। तो वापस से इनकम हाउस होल्ड में आने के बाद वो इनकम क्या करता है? सेव करता है क्या? सपोज बहुत गरीब इंसान है, ठीक है, जिसको बस खाने पीने का प्रॉब्लम चल रहा है, शॉर्टेज चल रहा है खाने पीने का, तो सबसे पहले क्या करेगा? वो पैसा पगार मिलेगा तो क्या करेगा? स्पेंड करेगा। स्पेंड कहाँ पे करेगा? वेयर ही स्पेंड? मार्केट में स्पेंड करेगा। मतलब कौन सी चीजें खरीदेगा? कंपनी की चीजें ही खरीदेंगे ना, जो कंपनी बनाएगा, जो फर्म बनाएगा, उसी का चीजें खरीदेगा। बेसिक नीड्स, ठीक है। सो बेसिक नीड्स करने के बाद स्पेंड करेगा, मतलब कंपनी के लिए। फिर वापस कंपनी इसको क्या प्रोवाइड करेगी? कंपनी व्हाट प्रोवाइड टू हाउस होल्ड सेक्टर्स को? And services. नेसेसरी गुड्स, Yes, sir. Goods and services. गुड्स एंड सर्विसेज। ये है टू सेक्टर्स इकोनॉमी, जिसको क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं। मतलब इनकम जनरेट कैसे होता है, इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अंडरस्टैंड? सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का अगर हम पढ़ने जाएं, द नेशनल इनकम एंड आउटपुट एक्सपेंडिचर आर जनरेटेड बाय द एक्टिविटीज ऑफ टू मोस्ट वाइटल पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक, हाउस होल्ड एंड फर्म। सबसे पहला स्टार्ट होता है हाउस होल्ड एंड फर्म से। देखो धीरे धीरे आपका एक एक पार्ट पता चलेगा कि हाउस होल्ड एंड फर्म्स थे, उसके बाद आपका सर्कुलर फ्लो आगे कैसे बढ़ेगा, फिर उसके अंदर कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं, मार्केट आ जाता है, फिर गवर्नमेंट आ जाता है, फिर किस तरह से आपका सेविंग इंक्रीज होता है, किस तरह से आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, फिर किस तरह से आपका कैपिटल इंक्रीज होता है। ये धीरे धीरे आप पढ़ोगे एक एक सेक्टर्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहला स्टार्ट होता है हाउस होल्ड एंड फर्म से। दे एंगेज इन म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंजेस। अगर हाउस होल्ड का बात करें तो हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड फैक्टर प्रोवाइड करता है। फैक्टर्स मतलब कौन? लेबर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो हाउस होल्ड इज अ प्राइमरी इकोनॉमिक फंक्शन। हाउस होल्ड क्या है? एक तरह का प्राइमरी इकोनॉमिक फंक्शन है ऑफ हाउस होल्ड इज टू सप्लाई डोमेस्टिक फर्म विथ नीडेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में आप लोगों ने सुना है, द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट? There are 4 factors of production to Land, labor, capital, entrepreneur. यस, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। किसी भी चीज को पूरा करने के लिए 4 लोगों की जरूरत पड़ती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो हाउस होल्ड सेक्टर से क्या प्रोवाइड होता है? हाउस होल्ड सेक्टर से लेबर प्रोवाइड होता है, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, ह्यूमन कैपिटल, रियल कैपिटल, एंटरप्राइजेस, ठीक है। द फैक्टर्स आर सप्लाइड बाय फैक्टर्स ओनर इन रिटर्न ऑफ अ रिवॉर्ड, ठीक है। जो सप्लाई करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब अगर लैंड सप्लाई किया तो लैंड ओनर को क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा, ठीक है। ह्यूमन सप्लाई किया मतलब उसको क्या मिलेगा? वेजेस मिलेगा। कैपिटल सप्लाई किया तो इंटरेस्ट मिलेगा, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें हैं। और एंटरप्रेन्योर रहेगा तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये इस तरह की चीजें जुड़ती जाती हैं हाउस होल्ड फैक्टर से। अब फर्म का बात करें तो फर्म क्या है? फर्म फंक्शंस ऑफ द फर्म इज सप्लाई द प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म्स क्या करता है? फर्म्स प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज मतलब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है डोमेस्टिक हाउस होल्ड को। जो घरगुती जिनको जो जरूरतों का सामान चाहिए उनको वो चीज प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड फर्म्स एंड टू हाउस होल्ड द फर्म्स अब्रॉड, टू दिस दे यूज द फैक्टर्स एंड पे देयर सर्विसेज। तो ये क्या करते हैं? वो फैक्टर्स को यूज करते हैं, हाउस होल्ड से आने वाले फैक्टर्स मतलब लेबर्स को यूज करते हैं और उनके जगह पे उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पे फॉर देयर सर्विसेज, जो जो काम करेंगे उनको उनका तनख्वाह या पगार या इनकम वगैरह जो भी रहेगा, सैलरी वगैरह, उनको प्रोवाइड करते हैं। तो ये फर्म्स क्या करते हैं? फर्म्स यूज करते हैं फैक्टर्स को फ्रॉम दी हाउस होल्ड्स एंड उनको पगार देते हैं। फिर वो जो पगार पाएंगे हाउस होल्ड वाले, वो खर्चा भी करेंगे उसी सेक्टर्स पे, और कंपनी वाले क्या करेंगे? उन्हीं के लिए जो गुड्स एंड सर्विस बनाएंगे उन्हीं को सप्लाई करेंगे। तो ये था हमारा हाउस होल्ड एंड फर्म्स के रिलेशंस। फैक्टर्स इनकम क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस अर्न एन इनकम व्हिच कंट्रीब्यूट टू नेशनल इनकम।
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या कमाते हैं? इनकम कमाते हैं, जो किसके लिए कंट्रीब्यूट किया जाता है? नेशनल इनकम के लिए। जैसे कि लैंड क्या कमाता है? रेंट कमाता है, ठीक है। कैपिटल क्या कमाता है? इंटरेस्ट। लेबर क्या कमाता है? सॉरी, कैपिटल क्या कमाता है? कैपिटल इंटरेस्ट कमाता है। लेबर क्या कमाता है? वेजेस, ठीक है। लेबर को क्या मिलता है? वेजेस मिलता है। और लैंड को क्या मिलता है? रेंट मिलता है। तो ये जो इनकम जनरेट होता है फैक्टर से, ये इनकम कंट्रीब्यूट होता है नेशनल इनकम के लिए। So members of the household pay for goods and services by the consumers with the income they receive from selling their factors in the relevant market. अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स का बात करें, यहाँ पे कुछ फॉर्म लिखे हुए हैं, उनके शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है। तो सिंपल functions of stated that output Q, functions F is determined by the factors input land L, labor LA and capital K. That is Q is equal to, मतलब आउटपुट जो रहेगा वो ऑल दी फंक्शंस को मिला के रहेगा। जो आउटपुट बनेगा, आउटपुट इज इक्वल टू फंक्शंस ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल होगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का बात करें तो फर्स्ट टू सेक्टर्स इकोनॉमिक, इसको हम लोग टू सेक्टर्स सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक बोलते हैं, यहाँ पे फर्म्स एंड हाउस होल्ड रहे। सो इनकम वाई इज इकोनॉमिक फ्लो फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। व्हेनेवर अ ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, न्यू स्पेंडिंग सी जनरेट अ न्यू इनकम, नया कुछ स्पेंड करोगे तो नया जनरेट होगा, विच जनरेट द फर्दर न्यू स्पेंडिंग सी एंड फर्दर न्यू इनकम वाई, सो ऑन। Spending and income continue to circular around the macroeconomic in what is referred to as circular flow of income. ये चार्ट से आप लोग को पता चल गया रहेगा कि फर्म्स क्या यूज करता है। फर्म हाउस होल्ड के फैक्टर्स यूज करते हैं। कौन से फैक्टर? लेबर वाले फैक्टर्स, ठीक है। लेबर को फैक्टर्स यूज करते हैं और उनको उनका इनकम प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो हाउस होल्ड फैक्टर्स वापस से क्या करता है? उस इनकम को स्पेंड करता है उसी जगह पे उस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। फिर कंपनी उनको क्या प्रोवाइड करती है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे तो इनकम नहीं बचता है। जैसे कि आप लोगों ने किसी इनकम में देखा रहेगा, एग्रीगेट कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन आप लोगों ने देखा रहेगा 12th में। याद आ रहा है किसी को कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन करके? अगर आप लोगों ने 12th को ध्यान से पढ़ा रहेगा, 12th में इकोनॉमिक ध्यान से पढ़ा रहेगा, तो उसमें कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन करके था। एग्रीगेट कंजम्पशन फंक्शन है, एग्रीगेट सेविंग फंक्शन, कि तब तक सेविंग स्टार्ट नहीं होता है जब तक हमारी जो नेसेसरी चीजें हैं वो हमारे लेवल पे नहीं आ जाती हैं। मतलब एज पर द इनकम जो हमारी जरूरतें पूरी रहती हैं, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हमारा सेविंग स्टार्ट नहीं होता। जैसे हमारी जरूरतें की चीजें पूरी हो जाती हैं, देन विल स्टार्ट डूइंग अ सेविंग, अंडरस्टैंड। उसको बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। तो यहाँ पे अभी तक किसी तरह का कोई सेविंग फंक्शन नहीं होता है, बिकॉज टू सेक्टर्स हैं। जो जरूरतमंद लोग रहते हैं, काम करने जाते हैं, काम करके पगार लेते हैं और पगार करके खर्चा करते हैं, तो उनका सेविंग नहीं हो पाता इस सेक्टर्स में। सो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, यहाँ तक समझा आप लोग को? ओके, ठीक है। Circular flow of income from the basis of all models of macroeconomic, and understanding the circular flow process is key explaining how national income, output and expenditure are created over a time. So injections and withdrawal, injections और withdrawals किस तरह का leakages बोल सकते हैं हम लोग उसको, ठीक है। The circular flow of with adjust flowing new injections into the or new withdrawals और leakages जिसको बोल सकते हैं जब किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, फेस होता है उस तरह को। And injections of a new spending will increase the flow. अगर आपको न्यू स्पेंडिंग कुछ करना है तो आपको फ्लो बढ़ाना पड़ेगा। And injections related to overall effects of an injections related to withdrawal forming changes in economic variables. Economic variables मतलब आप जिस तरह के जो भी काम और जिस तरह के जो फैक्टर्स यूज करोगे उन सबको इकोनॉमिक वेरिएबल्स बोलेंगे। जैसे अगर हम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का बात करें, ठीक है, अब आता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट कब होगा और किसके थ्रू होगा? अब सेविंग इन्वेस्टमेंट आ जाता है आपके थर्ड सेक्टर्स के लिए, जिसमें आप फाइनेंशियल सेक्टर्स को, ये देख रहे हो फाइनेंशियल सेक्टर्स। पहले अगर हम डायग्राम देखते थे, अगर इस डायग्राम पे फोकस करें तो यहाँ पे तीन चीजें ब्लैंक दिख रही है। अब ये धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। पहले तो टू सेक्टर्स थे जिसमें हाउस होल्ड फैक्टर्स इन्वेस्ट करते थे, सॉरी हाउस होल्ड फैक्टर्स जाते थे फॉर्म्स पे, इनकम कमाते थे, स्पेंड करते थे। अब ये धीरे धीरे इंक्रीज होगा, ठीक है। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाएगा। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट किसके थ्रू बढ़ते जाएगा? तो थ्री सेक्टर्स इकोनॉमिक कौन कौन हो जाएंगे? हाउस होल्ड, फर्म्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स। फाइनेंशियल सेक्टर्स मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब फाइनेंशियल मतलब बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग, अंडरस्टैंड। तो अब यहाँ से इनका सेविंग स्टार्ट होता है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट।
The simple circular flow therefore adjusted to take into the account withdrawal and injections. Household may choose to save. अब हाउस होल्ड को क्या स्टार्ट करना पड़ता है, सेविंग स्टार्ट करना पड़ता है ऑफ देयर इनकम में से, रादर देन स्पेंडिंग। तो जितना बचाएगा उतना उसका सेविंग होगा, एंड दिस रिड्यूस द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। Marginal decision to save reduce the flow of income in economic because saving is withdrawal out of the circular flow. However, the firm also purchase capital goods. Firm कभी-कभी capital goods भी खरीदती है, ठीक है, such as machinery from other firms, and this spending is injections in the circular flow. This process called investment process occurs because of existing machinery wears out, and because of the firm may wish to increase their capacity to production. अब दोनों के दोनों सेक्टर्स क्या करते हैं, एक सेक्टर्स तो सेविंग करने का सोचेगा और दूसरा सेक्टर्स क्या करने का सोचेगा, इन्वेस्ट करने का सोचेगा। जैसे कि हाउस होल्ड सेक्टर्स क्या सोचेंगे कि भाई मेरा सेविंग होना चाहिए, ठीक है, तो अपने पार्ट का कुछ इनकम का कुछ पार्ट सेविंग करना स्टार्ट करेगा। उसी तरह से जो फर्म सेक्टर्स है वो क्या सोचेगा, वो कुछ इन्वेस्टमेंट का सोचेगा, फाइनेंशियल सेक्टर्स कुछ मशीनरी में इन्वेस्ट करेगा, कुछ अदर बैंकिंग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगा, कुछ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। तो ये जो फर्म्स है ये भी फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ जाता है, और जो हाउस होल्ड सेक्टर वो भी क्या करता है, फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ जाता है। इन द मिक्स्ड इकोनॉमी विद द गवर्नमेंट the simple model must be adjusted to include the public sector. Therefore, as well as the saved household also likely to pay tax to the government, and further income is withdrawn out of the circular flow of income. ठीक है, अब यहाँ पे पब्लिक सेक्टर आ जाती है। इसके पहले हमने फाइनेंशियल सेक्टर देखा, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे पब्लिक सेक्टर्स कौन आ जाता है, ये। अब हाउस होल्ड सेक्टर्स को जैसे जैसे इनकम बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ता है वैसे वैसे लोगों का सेविंग, इन्वेस्टमेंट और प्लस एक चीज और बढ़ जाता है जो वो होता है खर्चा। खर्चा मतलब क्या होता है कि अगर जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, इफ यू आर अंडर द स्लैब ऑफ इनकम टैक्स रेट, तो कंपल्सरी यू हैव टू पे द टैक्स टू किसको, गवर्नमेंट को। अंडरस्टैंड, आपने सुना रहेगा इनकम टैक्स की बात। अब ये कैसे होता है कि जब तक आपका इनकम नहीं तब तक आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं, जब तक आपका इनकम नहीं तब तक आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। आपका सेविंग हो रहा है, आप बिलो स्लैब के नीचे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खर्चे करते जाओ, सेविंग करते जाओ, डजंट मैटर। लेकिन जैसे जैसे आपका इनकम टच होगा स्लैब्स को, ठीक है, गवर्नमेंट ने जो स्लैब इनकम टैक्स स्लैब डिसाइड किया रहेगा, उस स्लैब में अगर आपका इनकम आता रहेगा साल भर का, तो यू आर पे, आप लोग लायबल हो जाओगे पे फॉर इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स भरना अच्छी बात है कि बुरी बात है? आप कमा रहे हो, आप मेहनत करके कमा रहे हो, तो आप इनकम टैक्स भरना अच्छी बात है कि बुरी बात है? कौन बताएगा? एनीवन? क्यों भरते हैं टैक्स हम लोग? व्हाई द पीपल पेइंग द टैक्स, इनकम टैक्स? आप लोग टैक्स भरो, अच्छी बात है, ठीक है, तो क्यों टैक्स भरते हैं? आप लोग अगर कमाओगे, ठीक है, 10-12 लाख आपका पेमेंट रहेगा, 10-12 लाख में से आपको बोल दिया जाएगा कि 1 लाख 1.5 लाख आपको टैक्स भरना है। लॉ है इसके लिए, ठीक है, बोल सकते हैं कानून बनाया गया है, उसके आगे क्या होता है? इनकम टैक्स हम लोग इसके लिए भरते हैं कि जो हम लोग को आज बड़े बड़े रोड्स, कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग, गार्डन्स वगैरह जो देखने को मिलते हैं, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे, तो विद द हेल्प ऑफ किसके, हमारे ही टैक्सेस से। आप लोगों ने पढ़ा ना फिस्कल पॉलिसी में, टूल्स ऑफ द फिस्कल पॉलिसी, जिसमें टैक्स होता है एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, यही है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है तो आपका सेविंग भी बढ़ गया, ये तो मानते हो ना आप लोग? आपका इनकम बढ़ेगा तो आपका सेविंग भी बढ़ेगा, ओके। फिर और इनकम बढ़ेगा तो जितना इनकम बढ़ेगा सेविंग भी बढ़ेगा, सेविंग के साथ साथ आपका टैक्स भी बढ़ेगा। अंडरस्टैंड? अब ये और जुड़ जाता है टैक्स, ठीक।
सो यहाँ पे क्या होता है पब्लिक सेक्टर्स में, इन मिक्स इकोनॉमिक अ गवर्नमेंट अ सिंपल मॉडल मस्ट बी एडजस्टेड टू इंक्लूड द पब्लिक सेक्टर। एक सेक्टर और जुड़ जाता है पब्लिक सेक्टर। पहले दो सेक्टर्स थे, पहले हाउस होल्ड फर्म्स थे, ठीक है, फिर उस पर पब्लिक से फाइनेंस सेक्टर जुड़ गया, फिर एक सेक्टर और जुड़ गया पब्लिक सेक्टर्स। कैसे? इनकम बढ़ गया तो सेविंग, ठीक है, और इनकम बढ़ेगा तो एक पब्लिक सेक्टर और जुड़ जाएगा, मतलब टैक्सेशन सेक्टर जुड़ जाएगा और गवर्नमेंट स्पेंडिंग जुड़ जाएगा। अब टैक्स कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट और खर्चा करेगी किधर पे? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, रोड बनाएगी, ब्रिज बनाएगी, गार्डन्स वगैरह, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सब बनाते हैं। फर्दर pay the tax to the government and further income is withdrawn out of the circular flow of income. Government inject income back to the economy. Government वो कहाँ इंजेक्ट करती है? वो इकोनॉमिक पे इंजेक्ट करती है। जो टैक्सेशन कलेक्ट करेगी वापस से वो एजुकेशन सेक्टर्स में, हेल्थ केयर सेक्टर्स में, जैसे आप लोग को मैंने बताया, जहाँ पे जो अंडर डेवलप है उनको डेवलप करने का काम करेगी थ्रू द टैक्स कलेक्ट करके। अंडरस्टैंड? इंक्लूडिंग इंटरनेशनल ट्रेड। अब आ जाता है ट्रेड सेक्टर्स। अब ट्रेड सेक्टर देखो, जैसे जैसे आपका सर्कुलर फ्लो बढ़ रहा था वैसे वैसे आपका ये इंक्रीज हो रहा है। अब इसमें बात करें तो ये ओपन इकोनॉमिक हो जाता है। अब आपका इनकम ओपनली हो रहा है। फाइनली मॉडल हैज बीन एडजस्टेड टू इंक्लूड द इंटरनेशनल ट्रेड। अब किसको आ गया? आप किसको शामिल कर लिया आपने? इंटरनेशनल ट्रेड को शामिल कर लिया। कंट्रीज दैट ट्रेड आर कॉल्ड एज ओपन इकोनॉमिक। अभी तक आपका क्लोज इकोनॉमिक चल रहा था, अब आपका ओपन इकोनॉमिक आ रहा है, मतलब अब सब लोग जुड़ते जा रहे हैं आपसे। The household of an open economic will spend the sum of their income on goods from abroad. अब आप डिमांड करोगे, क्या डिमांड करोगे? आपको गुच्ची का कपड़े चाहिए, आपको बैग चाहिए, आपको ब्रांडेड चीज चाहिए, ठीक है, ब्रांडेड सामान जो आप लोग ब्रांडेड पहनते हो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर, जो इंडिया सेक्टर्स मैन्युफैक्चर नहीं करती है, तो आप लोग उन चीज़ों का डिमांड करते हो। तो गवर्नमेंट किसको शामिल करती है? फिर ट्रेड सेक्टर्स को। फिर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट चलता रहता है। आप डिमांड करते हो, आप परचेस करते हो, ठीक है, आप इंपोर्ट करना स्टार्ट करते हो, फिर इंपोर्ट करने के लिए फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जुड़ता रहता है। तो ये सब चीजें आपके ही इनकम से बढ़ी है। तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। पहले हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म, पहले आप गरीब थे, सिर्फ इनकम कमाते थे, खर्चा करते थे, फिर आप थोड़े थोड़े अमीर हुए, सेविंग बढ़ा, और अमीर हुए, आप टैक्स भरने लगे, और अमीर हुए, आप ब्रांडेड चीजें पहनने लगे, ठीक है, ब्रांडेड चीजों की डिमांड करने लगे। तो धीरे धीरे ये आपका सेक्टर्स ओपनली हो रहा है। सो ओपन इकोनॉमी विल स्पेंड ऑफ देयर इनकम ऑन गुड्स फ्रॉम अब्रॉड कॉल्ड एज इम्पोर्ट, एंड दिस विड्रॉल फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। Foreign consumers and firms will, however, also wish to buy domestic product. जो फॉरेन कंज्यूमर्स है वो भी क्या चाहते हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, कॉल्ड एक्सपोर्ट। तो उनको भी एक्सपोर्ट लगता है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाता है। दिस इज एन इंजेक्शन देयर सर्कुलर फ्लो। अंडरस्टैंड किस तरह से आपका सेक्टर्स किस तरह से बढ़ता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ऑल ऑफ यू कुछ समझा आप लोग को? तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में टू सेक्टर्स इकोनॉमिक क्या होता है? कौन से आते हैं टू सेक्टर्स इकोनॉमिक में? Household and firms. हाउस होल्ड एंड फर्म्स, सिर्फ हाउस होल्ड एंड फर्म्स आते हैं, ठीक है। तो टू सेक्टर्स फर्म में हाउस होल्ड एंड फर्म्स, सॉरी, टू सेक्टर्स इकोनॉमिक में हाउस होल्ड एंड फर्म्स आते हैं। फिर थ्री सेक्टर्स में कौन कौन आते हैं? टेल मी, थ्री सेक्टर्स इकोनॉमिक में? फाइनेंशियल सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड ट्रेड सेक्टर। यस। अब थ्री सेक्टर्स इकोनॉमिक का बात करें तो थ्री सेक्टर्स इकोनॉमिक में आपके आएंगे फाइनेंशियल सेक्टर्स, गवर्नमेंट, ठीक है, ये भी क्लोज इकोनॉमिक है। ओपन इकोनॉमिक कब होगा? जब आप इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ जाओगे, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करने से जुड़ जाओगे, तो आपका जो सेक्टर्स है वो किस तरह से हो जाएगा? ओपन इकोनॉमिक हो जाएगा। जब तक आप कंट्री के अंडर हो तब तक आपका क्लोज इकोनॉमिक, मतलब पहले हाउस होल्ड फर्म्स थे तो क्लोज इकोनॉमिक था। हाउस होल्ड फर्म फाइनेंशियल मार्केट आया, क्लोज इकोनॉमिक। हाउस होल्ड फर्म फाइनेंशियल मार्केट गवर्नमेंट आया, क्लोज इकोनॉमिक। हाउस होल्ड फर्म फाइनेंशियल मार्केट आने के साथ साथ, ठीक है, गवर्नमेंट आने के साथ साथ आपने फॉरेन ट्रेड को इन्वॉल्व कर लिया, मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट चालू हो गया। फिर आपका क्या हो गया? ये जो इकोनॉमिक हो गया वो कैसा हो गया? ओपन इकोनॉमिक हो गया, मिक्स्ड इकोनॉमिक। सो अंडरस्टैंड?
ऑल ऑफ यू, समझा आप लोग को? ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? क्या इंपॉर्टेंस है? स्मूथ फंक्शनिंग, सबसे पहला पॉइंट है स्मूथ फंक्शनिंग। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमिक मतलब एक स्मूथली चलते रहता है। देखो आप जिस तरह से डायग्राम आपने देखे रहेंगे, ठीक है, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है वैसे वैसे आपका सेविंग, टैक्सेशन और आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता रहता है, आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी बढ़ता रहता है। तो एक तरह का स्मूथ फंक्शनिंग है इकोनॉमिक के लिए। ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर कट आपको एक तरह का आइडिया बताता है कि किस तरह से हमारा जो इकोनॉमिक है वो क्लोज से ओपन होता है, मतलब क्लोज कब तक रहता है और ओपन कब तक होता है। ठीक है, वी कैन नो द वेदर इकोनॉमिक इज फंक्शनिंग, काम कर रहा है अच्छे से कि नहीं कर रहा है अच्छे से, ये भी आप देख बता सकते हो। वेदर देयर आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब बात करें हाउस होल्ड फर्म की, क्लोज रहता है। हाउस होल्ड फर्म फाइनेंशियल सेक्टर्स की क्लोज रहता है। हाउस होल्ड फर्म फाइनेंशियल सेक्टर्स एंड गवर्नमेंट क्लोज रहता है। लेकिन जैसे ही हाउस होल्ड फर्म फाइनेंशियल सेक्टर्स गवर्नमेंट के साथ साथ फॉरेन ट्रेड जुड़ जाता है तब तुम्हारा इकोनॉमी क्या हो जाता है? ओपनली हो जाता है, बिकॉज इट डीलिंग विद द, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? फर्स्ट पॉइंट, समझा आप लोग को? फर्स्ट पॉइंट ठीक है। तो ये तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, आप लोग नोट करके रख सकते हो। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका हेल्प्स टू फाइंड आउट। हेल्प्स टू फाइंड आउट, क्या पता लगाना? हेल्प्स टू फाइंड आउट द लीकेजेस। कहाँ पे लीकेजेस? इन द सर्कुलर फ्लो। हेल्प्स टू फाइंड आउट द लीकेजेस। अब ये लीकेजेस क्या होता है? लीकेजेस मतलब प्रॉब्लम, ठीक है, एक तरह का प्रॉब्लम बोल सकते हो उसको, लीकेजेस ऑफ द सर्कुलर फ्लो में। तो सर्कुलर फ्लो कॉन्सेप्ट हेल्प करता है अपने को टू फाइंड आउट द लीकेजेस, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ सेविंग, प्रॉब्लम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, प्रॉब्लम ऑफ टैक्सेशन एंड इफेक्ट देयर, जिसका जो इफेक्ट होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे। ये सब प्रॉब्लम हमको हेल्प होती है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से स्टडी करने पे, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमको ये पता चलता है कि किस जगह पे लीकेजेस, मतलब किस जगह पे प्रॉब्लम हो रही है, सेविंग में प्रॉब्लम हो रही है क्या, इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रही है क्या, टैक्सेशन में प्रॉब्लम हो रही है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैरिफ में प्रॉब्लम हो रही है, या उनके क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स के ऊपर। ये सब हेल्प करता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? एंड ऑल्सो अनदर पॉइंट्स इज दिस, नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पूछो मेरे को, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग तो मुझे पूछ सकते हो। एंड वन मोर पॉइंट इज देयर, हाईलाइट करना। आप लोग देखते रहोगे, हाईलाइट द इम्पोर्टेंट, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। अब इसमें जुड़ गया है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। अब ये जो मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी है पूरे इकोनॉमिक से जुड़ा रहता है, अंडरस्टैंड। अब ये क्या हाईलाइट करता है कि जैसे जैसे आपका सर्कुलर फ्लो बढ़ता रहता है तो आपका एक्सपेंडिचर्स और आपका सेविंग वगैरह भी बढ़ता रहता है, तो ये इंपॉर्टेंस देता है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी को। तो आपको पता चलता है कि गवर्नमेंट में कौन सी चीजें, गवर्नमेंट ने कौन सी चीजें महंगी कर दी है, गवर्नमेंट ने कौन सी चीजें सस्ती कर दी है, गवर्नमेंट ने टैक्सेशन पॉलिसी क्या बनाया है, गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग पॉलिसी क्या बनाया है, गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ पे स्पेंड किया हुआ, ये सब चीजें आपको पता चलती है धीरे धीरे, ठीक है। जैसे जैसे आपका इनकम फ्लो बढ़ता है वैसे वैसे आपका जो ये अपना नॉलेज रहता है और जो भी मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी का जो पॉइंट आउट रहता है ये भी आपको समझ में आता है, फिर अंडरस्टैंड। फिर आपको समझ में आता है कि आपका इनकम्स कैसे हो रहे हैं और आपका एक्सपेंडिचर्स कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक का, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम?
ओके, so this is a circular flow of income. ठीक है, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर्स आज के लिए हम लोग इतना स्टॉप करते हैं। वापस एक बार बेसिक चीज आपको रिवाइज करा देता हूँ। हाउस होल्ड एंड फर्म्स, ये ओपन इकोनॉमिक है कि क्लोज इकोनॉमिक है? फर्स्ट क्लोज इकोनॉमिक है। ईच एंड एवरीवन फास्ट रिप्लाई। ठीक है, हाउस एंड फर्म क्लोज इकोनॉमिक है। हाउस होल्ड, फर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर ओपन की क्लोज? रोल नंबर 13 इज नॉट ओपन। देखा, अभी भी आप लोग को, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ। हाउस होल्ड फर्म क्लोज इकोनॉमिक है। हाउस होल्ड, फर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर ऑल्सो क्लोज इकोनॉमिक। ठीक है, हाउस होल्ड, फर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर एंड गवर्नमेंट, ये क्या है? ओपन की क्लोज? यस, दिस इज ऑल्सो क्लोज। इनको हम मिक्स इकोनॉमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्स इकोनॉमिक, क्लोज इकोनॉमिक बोलते हैं। अंडरस्टैंड? फिर ओपन कौन सा होगा? ओपन इकोनॉमिक क्या होगा? जिसके अंदर हाउस होल्ड, फर्म, फाइनेंशियल सेक्टर, गवर्नमेंट के साथ ट्रेड आ जाए, फॉरेन ट्रेड। ये कौन सा सेक्टर हो जाएगा? ये ओपन सेक्टर हो जाएगा, ओपन इकोनॉमिक सेक्टर। अंडरस्टैंड? अभी डाउट क्लियर हो गया सबका? ठीक है।